Hello Standard 4th. Welcome in previous lecture. Previous lecture we have completed our chapter number 17 Nandita in Mumbai up to page number 144. Now today we are going to discuss some points over here. Right? Write in your notebook. Number 1. Why does Mama have to change his house? कि भाई मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ा तो करना पड़ रहा है तो मामा हैव टू चेंज हिज हाउस बिकॉज देयर शुड बी अ होटल इज गोइंग टू बिल्ड ओवर देयर वहाँ पर शायद होटल बनने जा रहा है हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस इफ यस व्हाई डिड यू हैव टू मूव कि भाई आपको अपने घर से मूव होना पड़ा है तो इफ यू आर लिविंग ऑन रेंट then you have to leave your house. Otherwise, if you are shifting in new house, in that case you have to move from your house. Otherwise there is no need to move from our house, right? So this is the two reason. Otherwise if we are going to you can say shift in new city, okay, these are the some reasons. Do people in your family have to go for far their work? Where do they go? How far do they have to go? Yes, our father and if there are uncle or this type of person are in our family, they have to go far in cities because in cities the industrial areas and some other things are very far away from our house. If our father is working in any factory, then he has to move very far from the house. And they are moving about 8 to 10 kilometers, right? About, huh? It is right that Mama and other have to move because a hotel is going to be built there. कि भाई आपको क्या लगता है कि मामा और उसकी फैमिली को और वहाँ पर जो दूसरे लोग रह रहे हैं वो कहीं दूर उसको जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ होटल बनने जा रहा है तो इज इट राइट तो आई थिंक इट इज नॉट राइट बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू बिल्ड सम लग्जरीज फॉर आवर सेल्फ देन व्हाट इज द नीड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉमन पीपल्स कि भाई हम हमारी लग्जरीज के लिए अगर होटल बनाने जा रहे हैं तो हमें लग्जरीज चाहिए तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ऐसे कॉमन पीपल की जो जरूरियातें हैं उसको नजरअंदाज कर दें, है ना, कि वो अगर दूर चले जाएंगे तो अपनी जो डेली लाइफ्स है वो कैसे जिएंगे. तो इट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी. हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? इससे किसको फायदा होता है? तो द बिल्डर्स, राइट, द होटल ओनर्स, the government, this type of people are going to get benefits. Who will face difficulties? So the families just like Nandita's mama and this type of families have to face so many difficulties. Do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama? Talk about it in class. भाई आपको पता है कि नंदिता के मामा की तरह किसी और को भी ऐसे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा हो तो अगर आपको पता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. बट इन माय मेमोरी आई कांट से दिस टाइप ऑफ पीपल आई हैव सीन ओवर देयर. नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट. यहाँ पर आपको अपनी चॉइस का एक मकान बनाना है और उसको कलर करना है. So here our chapter number 17 is going to complete and I am going to start our new chapter number 18. Too much water, too little water. Too much water का मतलब है बहुत सारा पानी और too little water का मतलब है बहुत ही कम पानी. So there is some difficulties in people's lives. So that this chapter is given over here perhaps. What to drink? नालामाड़ा आंध्र प्रदेश. ये शायद कोई नालामाड़ा करके गांव है आंध्र प्रदेश का, उसकी बात है.
Suguna was reading her book when she heard someone at the door. She saw that there was a visitor from the city. Appa welcomed the guest. He told Selva to bring a cold drink for him. The guest said, I do not take cold drink. I will just have a glass of water. Appa said, this day we are not getting water that is fit for drinking. It does not even look clean. It would be better if you do not drink this water. We do not have a choice, so we drink it. एक दिन ये सगुना है, वो अपनी बुक जब पढ़ रही थी तब उसने सुना कि दरवाजे पर कोई है, और उसने देखा तो एक शहर से आदमी आया था उसके घर। तो उसके फादर ने उसको वेलकम किया, और उस कोई सेल्वा है, पता नहीं कौन है, भाई है बहन है, आई डोंट नो। तो उनको बोला कि चलो आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आओ। तो गेस्ट ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी दे दो। तो उसके फादर ने बोला कि आजकल हमारे यहाँ पानी अच्छा नहीं आ रहा है जो आप पी सको, मतलब वो पीने लायक नहीं है और वो दिखने में भी क्लीन नहीं लगता है। तो आप वो बेटर है कि आप कोल्ड ड्रिंक ही लो, यहाँ का पानी मत पियो। लेकिन हमारे पास तो कोई और चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम लोग ये पानी पीने पर मजबूर हैं। मतलब ये जो भी गांव है कर्नाटक का, वहाँ पानी की शॉर्टेज है या फिर पानी में कुछ गड़बड़ी चल रही है, जिसकी वजह से वो पानी गंदा है और पीने लायक नहीं है, लेकिन ये लोगों को मजबूरन वो पीना पड़ता है। Now discuss how can unclean or dirty water harm our body। कि भाई जो अनक्लीन है, मतलब जो गंदा पानी है, वो हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो इफ वी आर गोइंग टू ड्रिंक अनक्लीन वाटर, वी हैव सो मेनी stomach disease just like diarrhea, vomiting, okay। Now have you ever got dirt or unclean water in your area? What was the reason for this? भाई आपके एरिया में कभी आपको ऐसा डर्टी वाटर मिला है? तो मोस्टली हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ कभी हुआ हो किसी के यहाँ, सो देयर इज द मेन रीजन ऑफ द मिक्सिंग ऑफ गटर, जिसको हम ड्रेनेज लाइन बोलते हैं, लीकिंग ऑफ ड्रेनेज। इसकी वजह से आपकी पाइपलाइन या तो ड्रिंकिंग वाटर की या ड्रेनेज की टूट गई है, तो वो मिक्सअप हो सकता है और आपको गंदा पानी मिल सकता है। When the guest came to Suguna's house, they offered him cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Suguna family must be doing for their own drinking water? भाई जब सुगना के घर पर गेस्ट आए तो उन्होंने पानी ऑफर नहीं किया, कोल्ड ड्रिंक किया, तो उन्होंने मना कर दिया, राइट। लेकिन वो खुद तो वो पानी पी रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो कि वो क्या करते होंगे उस पानी को ड्रिंकेबल बनाने के लिए? तो परहैप्स दे आर गोइंग टू बॉइल्ड इट, स्टेयर इट एंड देन ड्रिंक इट, कि वो लोग उसको उबालते होंगे, उसको छानते होंगे और फिर पीते होंगे। द गेस्ट सेड he did not take cold drink. Why do you think he said this? भाई उसके घर पर जो गेस्ट आए उन्होंने बोला कि भाई मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, तो आप क्या सोचते हो कि उन्होंने मना क्यों किया? So the guest did not accept the offer of cold drink. So I think he know that the cold drink is not healthy for us, and that's why he has refused his their offer. Or otherwise he has suppose he is coming from the other city and he has just eaten some foods properly, and there is no need to take some other things or cold drink type that he may full of his stomach, right? Perhaps his stomach should be full of, and that's why he refuse and want to drink some waters over there, okay। Now water games। बाजार गांव
महाराष्ट्र। ये जो इंसिडेंट्स है वो महाराष्ट्र के एक बाजार गांव का है। पहले जो हमने देखा वो आंध्र प्रदेश का था, एक गांव जिसका नाम था नालमाड़ा। नाउ देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विथ देयर पेरेंट्स टू वाटर पार्क। There were many water fountains. Reena said, "Look, Rohan, there are so many rides in the water. And look at all these big ponds." Rohan said, "Splash, splash, splash." Both turned around. They saw a long, thick water hose going zoom, zoom, zoom. कि भाई इस गांव में एक बड़ा सा वाटर पार्क है और रोहन और उसकी सिस्टर रीना है वो वहाँ पर अपने पेरेंट के साथ गए हैं और वहाँ पर बहुत सारा पानी है, बहुत सारे फव्वारे हैं। तो रीना ने क्या बोला कि रोहन देखो यहाँ पर कितनी सारी राइड्स है पानी की, और देखो वहाँ पर कितने सारे तालाब हैं बड़े बड़े, मतलब कि पूल्स पानी में जहाँ पर हम नहाते हैं। तो रोहन स्प्लैश स्प्लैश ऐसी आवाज़ें निकालता है जो कि हम पानी में करते हैं ना। और दोनों फिर आजू बाजू में चलते हैं और फिर उन्होंने एक पानी का बड़ा सा होस, मतलब जिसको हम धोध बोलते हैं ना, पानी जो पाइप में से निकलता है, तो वो जा रहा था जूम जूम करके। तो उनको शायद बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज ये लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।